Hello friends, I'm your educator Ms. Preet at Study Bar. Hope you all are fit and fine in this pandemic time and your studies are going very well. So what interesting topic we are going to take in our universe series today. Yes, we have studied how universe is formed, whose link I am providing you above. If you have not seen that video, just see it before seeing this one. Okay, so let's see what interesting topic we are going to study today. The topic is we will explore into our galaxies. How that we will see what is a galaxy and what are some types of galaxies, or are there some types of galaxies, and we will see some galaxies and we will having a sort of information about that. I think it is very interesting and I feel you all will like this session. So before starting this session or this lecture, I first welcome you to Study Bar and I first recommend you to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the latest notifications. And be kind while seeing this video. How? Like and share this video so that more people can get help. If you have any doubt, we have an opportunity to help you. You can write in the comment section below. So without wasting, now let's start. Now one more information which I have for you all is that just if you want to be more interactive with your teacher and you want that more interesting topics, more interesting information we want, so just go on Telegram app. If you have not downloaded it till now, just download it and search their Study Bar, or you can use the link which I have mentioned here, t.me/studybar. Okay, so with that you will be, your studies will be becoming more easy peasy lemon squeezy. So just go and subscribe the channel today. So now again, like the last session, let's go into the universe. Now we have gone into our universe with the rocket and we are wondering that how, like, stars, galaxies are there. We are wondering that what are these stars, how these galaxies we are seeing, that what are these things. So what actually I told you is that these are galaxies. You ask me, ma'am, what is a galaxy? So that is our important topic which we are going to study today. So let's go into the universe. Be ready to explore the galaxies and to understand, to get a very wide information about galaxies. So now let's start. Our first question which we have is that what is a galaxy? Galaxy actually में है क्या? What does this mean? So galaxy is, wait. So galaxy is what? A huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system. Galaxy क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी collection है which contains gases as well, hydrogen, oxygen, nitrogen, helium, argon, many gases, neon, like we can say a huge collection of gases. Not only gases, we have dust particles as well as we have stars, twinkling stars which we see in the sky, and solar systems. And not only, one thing which I want to tell you, not only we have our galaxy into the universe, we do not have Milky Way galaxy only. There are many galaxies like Sirius 1, Virgo A, many galaxies are there. So just don't think that we have only our galaxy into the universe. Okay, so now ma'am, we have a question again. What is a galaxy तो clear हुआ, but अभी जो ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, या जो ये स्टार्स हैं, ये कैसे हेल्ड हैं टुगेदर? ये कैसे एक बॉन्ड में इस गैलेक्सी में, ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, दिस इज अ गैलेक्सी, तो ये कैसे इकट्ठे बाउंडेड हैं? दैट इज व्हाट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज. ठीक है, जिसने हमारा यूनिवर्स बनाया अभी वही सारा कुछ कर रहा है. उसने ही एक गैलेक्सी को इकट्ठा करके, मीन सारे गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स या सोलर सिस्टम्स को इकट्ठा करके एक गैलेक्सी का नाम दे दिया. क्लियर? सो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ गैलेक्सी एक्चुअली. अभी आप और आगे जा रहे हो यूनिवर्स में, और ज़्यादा आगे जा रहे हो, और आपको ना अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वहाँ पे. कोई कैसी गैलेक्सी है, कोई आपको स्पाइरल शेप दिख रही है, कोई आपको एलिप्सिस शेप दिख रही है, कोई लेंटिकुलर शेप दिख रही है. ये क्या शेप्स हैं? तो इसी बेसिस पे, इनके शेप्स के बेसिस पे द गैलेक्सीज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स. इजंट दैट इंटरेस्टिंग मैम? यूनिवर्स की भी गैलेक्सीज, यूनिवर्स में भी आगे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज की भी आगे टाइप्स हैं, टाइप्स की भी आगे टाइप्स होंगी.
That can be. So it is going to be very very interesting. So be interested with that, and also like this session if you really get a sort of information. So now let's come to our topic. अभी ये जो मैम ये इसकी टाइप्स है ना, ये आपने 4 टाइप्स लिखी है, ये बताई थी किसने किसने बताई थी? These 4 types were invented by Edwin Hubble. So Edwin Hubble invented a classification of galaxies and grouped them into 4 classes. उसने सारी मीन्स गैलेक्सीज को देखा बाय टेलीस्कोप, and he saw 4 major structures and classified into 4 4 classes. The first is the elliptical class. Understanding, the first is elliptical class and the second is the spiral class. That is spiral class. The third is lenticular and the fourth is irregular galaxy. Elliptical, lenticular, spiral and irregular. So firstly we'll be discussing what are elliptical, then spiral, then lenticular and then irregular. That will be the most important, most interesting and the most important part, where we will find out Milky Way galaxy कि Milky Way galaxy इनमें से कौन सी टाइप है, एलिप्टिकल में है, स्पाइरल में है, लेंटिकुलर में है या फिर इरेगुलर में है. That is going to be very very interesting. So now let's start it. स्टार्ट करें. एलिप्टिकल गैलेक्सीज की बात करें अगर हम, सो लेट्स लेट इट बी हियर. सो एलिप्टिकल गैलेक्सीज यहाँ पे रखते हैं इसे. एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर शेप लाइक ellipses. ellipses मैम, ellipses कैन वी हैव अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन? ellipses कैसी शेप होती है? शेप देखनी है हमें. सो ellipses इज अ शेप लाइक दिस. ऐसी शेप है एलिप्सिस. लाइक स्ट्रेच सर्कल्स लिखा हुआ है ना, सर्कल कैसा होता है कॉमन? ऐसा. दिस इज व्हाट आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपर्ली. ऐसा होता है सर्कल. यार ड्राइंग, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड. सो स्ट्रेच्ड मीन्स अगर आपके पास ये एक सर्कल है तो ये बीच में से फ्रॉम द मिडल इट विल बी स्ट्रेच्ड. सो स्ट्रेच्ड सर्कल्स आर नोन एज ellipses. दे आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स. एलिप्टिकल गैलेक्सीज आगे 8 टाइप्स में डिवाइडेड है. सो व्हाट कैन वी थिंक ऑफ इट? तो एक और हमें जो नई चीज पता लगी है कि कितने टाइप्स हैं, 8 आगे टाइप्स हैं, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा मैम. वी डोंट वांट टू डू दैट मच. ओके, वी विल बी डूइंग ओनली 2 to 3. So the first which we have is EOE7. They have such interesting names. EOE7 कि कितनी ज़्यादा एलिप्टिकल है. एलिप्टिकल मीन्स टू से कि पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है या फिर नियरली सर्कुलर ही है. ठीक है. EOE7 डिपेंडिंग ऑन हाउ एलिप्टिकल दे आर. द नेक्स्ट इज EO एलिप्टिकल आर नियरली सर्कुलर. अभी EO इनकी एक टाइप है, दैट इज कि जो ये EO एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं ये नियरली क्या है, सर्कुलर है. क्लियर. वाइल E7s आर वेरी स्ट्रेच्ड आउट. अभी अगर मैं E7 एलिप्टिकल गैलेक्सीज की बात करूं, दे आर वेरी स्ट्रेच्ड आउट. elliptical galaxies are made up of mostly old stars, means age stars के बने होते हैं. old stars होते हैं ज़्यादातर. do not have much gas and dust. ज़्यादातर इनमें गैस और डस्ट कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती. और जो स्टार्स हैं वो भी पुराने ही होते हैं. ठीक है. there is very little new star formation in this galaxies. old stars are there और जो new stars है वो बनते ही बहुत कम है. so we can come to know that old stars तो पूरे अच्छी तरह से इसमें present हैं. तो सारे क्या है, स्टार्स बहुत कम बनते हैं और ज्यादातर क्या है, ओल्ड स्टार्स हैं. एलिप्टिकल गैलेक्सीज ऑल्सो कम इन मैनी साइजेस. अभी ऐसे नहीं है कि इलिप्टिकल साइज जो मैंने इस पिक्चर में इलस्ट्रेट कर दिया या जो डिपिक्ट कर दिया, दैट विल बी ओनली द साइज ऑफ इलिप्टिकल गैलेक्सीज. नो, देयर आर मेनी साइजेस इन विच वी फाइंड एलिप्टिकल गैलेक्सीज. द वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज द पिक्चर विच आई हैव पुट at the back of this text, that is all the example of elliptical galaxies. So ये जो पिक्चर इसके पीछे है ये क्या है, एलिप्टिकल गैलेक्सी की ही एक एग्जाम्पल है. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे कहीं भी, अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, चलो बाद में देखते हैं. एलिप्टिकल गैलेक्सीज ऑल्सो कम इन मैनी साइजेस. तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज ऐसे नहीं है जो मैंने यहाँ पे साइज दिखा दिया यही साइज होगा. नो, देर आर मेनी साइजेस. द लार्जेस्ट गैलेक्सीज वी सी आर एलिप्टिकल. दो ये लाइन का आप ये भी मतलब समझ सकते हो
कि द लार्जेस्ट गैलेक्सीज वी सी आर एलिप्टिकल, कि ज़्यादातर जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में वो क्या है, एलिप्टिकल हैं, बट इट डजंट मीन्स दैट, इट मीन्स कि सबसे जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, लार्ज होती हैं। द लार्जेस्ट गैलेक्सीज वी सी आर एलिप्टिकल, जो या फिर जो हम बड़ी बड़ी गैलेक्सीज देखते हैं वो क्या होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, या फिर जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं वो ज़्यादातर बड़ी होती हैं। बट एलिप्टिकल गैलेक्सीज कैन ऑल्सो बी स्मॉल, अभी ये छोटी भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि आपको बड़ी ही मिलेंगी, नो, वी कैन बी स्मॉल, ओके, इट्स देयर विश। अबाउट 60% ऑफ गैलेक्सीज आर एलिप्टिकल, अभी बोल रहे हैं देयर आर अबाउट 60% ऑफ ऑल द गैलेक्सीज आर एलिप्टिकल, तो बोल रहे हैं दैट 60%, ठीक है, 60% क्या है, एलिप्टिकल है, ओके। तो एलिप्टिकल गैलेक्सीज में मुझे कहीं भी सारा पढ़ के ये नहीं पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी एलिप्टिकल है या नहीं। I have read all the text but I did not found. Hope you all did not found. Even you have, if you have listened also, आपको मिला, आपने अगर सुना भी होगा तो आपको नहीं मिला होगा कहीं भी कि मैंने कहीं भी बोला है कि मिल्की वे गैलेक्सी इज एलिप्टिकल गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एलिप्टिकल गैलेक्सी नहीं है। तो हमारे पास अभी कितने ऑप्शंस रहेगी, 3 रहेगी। द वन इज लेंटिकुलर, देन अनदर इज इरेगुलर, एंड द वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज स्पाइरल। सो अभी स्पाइरल गैलेक्सी पे चलते हैं और उसमें फाइंड आउट करते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, कौन सी टाइप में आती है, स्पाइरल गैलेक्सी है। लेट्स सर्च इट आउट। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज। Spiral galaxies are twisted collections of stars and gas that often have beautiful shapes and are made up of hot young stars. अभी यहाँ से आप सोचोगे मैम हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना उसकी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेप है, वो तो स्पाइरल गैलेक्सी ही होगी। लेट्स सर्च इट आउट। जस्ट बी like slow and steady wins the race. Just be slow and steady and just wait for your answer. Okay. स्पाइरल गैलेक्सी क्या है, वो कलेक्शन है किसकी, स्टार्स और गैसेस की, जिनकी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल शेप्स होती है। नो दिस गैलेक्सी व्हिच आई हैव इलस्ट्रेटेड हियर इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, okay, it's a spiral galaxy. Most of the galaxies that scientists have discovered so far are spiral galaxies, और यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं they are spiral galaxies. They have a nearly number of 77%. 77% in the universe are spiral galaxies, okay. और जितनी सबसे ज्यादा जो मीन्स गैलेक्सीज साइंटिस्ट ने फाइंड किए दे आर ऑल्सो स्पाइरल गैलेक्सीज। नाउ आवर पॉइंट हियर इज मिल्की वे लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट फास्ट। मिल्की वे द गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। नो नो नो, पॉइंट इज रॉन्ग, दैट इंक्लूड्स अस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी। नाउ हियर आपका आंसर आपको मिल गया, ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ी। दैट इज आर मिल्की वे। हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो किस टाइप में है, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी। नो एक्चुअली इफ यू फाइंड आउट एनीवेयर ऑन योर ब्राउजर एज वेल तो आपको लिखा मिलेगा बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी। सो व्हाट डज दिस बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी मैम, ये जो बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी हमारे पास लिखा रहा है, ये जो वर्ड है बार्ड, what does this mean? This is actually a type of spiral galaxy which is very important. आप कोई भी गैलेक्सी सर्च करोगे जो स्पाइरल होगी उसके आगे या तो बार्ड लिखा होगा या ऑर्डिनरी नॉर्मल लिखा होगा। ऑर्डिनरी और नॉर्मल सेम है, यू कैन से ऑर्डिनरी। बार्ड और ऑर्डिनरी क्या है अभी, what are these? These are such two types of the spiral galaxies. Two types of spiral galaxy. The first is ordinary galaxies. Let's see what are these. The normal spirals have arms that emanate from the nucleus. The normal spirals have arms that emanate from the nucleus. Ma'am, we did not understood this statement. Let me help you in understanding this statement. So the statement says the normal spirals have arms. Spiral क्या है? What is spiral? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडविन हबल ने जो सारी जो गैलेक्सीज फाइंड की थी ना मोस्टली शेप्स पे फाइंड की थी। तो आप बोलोगे मैम स्पाइरल इज अ शेप, यस रियली इट्स अ शेप। सो विच शेप इट इज, तो इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे फाइंड आउट करते हैं दैट व्हाट इज स्पाइरल। और ये आर्म्स वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस मीन, सो लेट्स फाइंड आउट इट। So now spiral arms are regions of stars
that extend from the center of spiral. अभी पहले हम spiral arms समझते हैं, then will be covered that what is spiral actually. Spiral arms are regions of stars that extend from the center of spiral and barred spiral galaxies. These long thin regions resemble a spiral and thus given spiral galaxies and thus give spiral galaxies as their name. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द स्पाइरल. सेंटर तो मैम हम अगर देखें तो हमें तो ये लग रहा है, यस वेट, हाँ यही आपका क्या है, सेंटर है स्पाइरल का. Now let's see what is actually spiral. Spiral arms हमें नहीं समझ आएगा जब तक बताओगे नहीं कि स्पाइरल क्या है. So let me tell you, spiral is a shape, यहाँ से आप अच्छे से समझो, जिसको आप पेपर पे ड्रॉ करके लाइक you make it round in front of someone's head and the person is like falling unconscious. So ये राउंडी राउंड एंड राउंड, इट इज व्हाट, क्या है, ये स्पाइरल शेप होती है, इट इज अ स्पाइरल शेप. और ये गैलेक्सी जो है यहाँ का इसका, तो अभी गैलेक्सी पे बाद में जाते हैं. फर्स्ट सीट, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है ना, इस पॉइंट से. सो इट इज व्हाट, द सेंटर. कहाँ पे था, ये रहा, इट इज व्हाट द सेंटर ऑफ स्पाइरल. और अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या है, देखो क्या क्या ये एक स्पाइरल शेप है, यू कैन सी. तो सच अ ब्यूटीफुल शेप दे हैव, इसीलिए लिखा हुआ था मैंने दैट दे रिसेंबल अ वेरी ब्यूटीफुल शेप. ठीक है. सो अभी आपको पॉइंट ये तो क्लियर हुआ दैट स्पाइरल क्या है, स्पाइरल क्लियर हुआ. नाउ लेट्स स्टडी स्पाइरल आर्म्स. स्पाइरल आर्म्स क्या है, वो रीजन है जहाँ पे जो स्टार्स हैं वो कहाँ से एक्सटेंड करने, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पाइरल. अभी हमने सेंटर कहाँ पे देखा था, ये रहा सेंटर, या फिर गैलेक्सी का देखते हैं, ये रहा सेंटर गैलेक्सी का. और ये जो लॉन्ग थिन रीजन्स हैं, दीज लॉन्ग थिन रीजन्स क्या हैं, ये स्पाइरल, एक स्पाइरल गोल 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 स्पाइरल असेंबल करते हैं, दस दे गॉट देयर नेम एज स्पाइरल गैलेक्सीज. तो स्पाइरल आर्म्स और स्पाइरल क्लियर हुआ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड ओनली. सो नाउ types of spiral galaxies. The normal spirals have ordinary galaxies, the normal spirals have arms that emanate from the nucleus. Emanate का मतलब क्या है, that means they spread या फिर they start spread. Mostly इसका मतलब है spread. Let me change the ink color. They spread from the nucleus. Clear? Now next is our barred galaxies. What are barred galaxies? Barred spirals have a bright linear feature called a bar. So now the picture which is being illustrated here, is this a barred spiral galaxy or an ordinary galaxy? It's a question to you. Just answer it in your mind. You can also tell me in the comment section. So barred galaxies have a bright linear feature called a bar. तो अभी जो barred galaxies है इनमें क्या है, एक बहुत bright linear feature है, बहुत bright सा linear feature है, that is what called a bar. तो इनमें एक बार होता है जो बहुत ज़्यादा bright होता है, with the arms unwinding ends of the bar. तो अभी आपको ये आप यहाँ पे समझो. So now see, तो ये जो आपको टाइप एग्जाम्पल दिख रही है आपको, ये क्या है, सेंटर है, और यहाँ से क्या है, ये क्या है, अनविंडिंग आर्म्स हैं, स्पाइरल आर्म्स हैं, ये दीज आर स्पाइरल आर्म्स. तो ये जो स्पाइरल आर्म्स हैं और ये ब्राइट आपको लीनियर फीचर बार दिख रहा है, ये क्या रिसेंबल कर रहा है, दैट इट इज अ स्पाइरल आर्म. और इफ वी गो ऑन हियर, वेट, इफ आई गो ऑन दिस पिक्चर, तो ये मुझे कौन सी पिक्चर दिख रही है, ये मुझे क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, और यहाँ पे आई कैन सी सम स्मॉल स्मॉल लाइंस. दिख रही हैं आपको सभी को ये लाइंस? आई एम एबल टू सी यू ऑल विल बी ऑल्सो. ठीक है, ये भी दिख रही है एक मुझे, मैनी लाइंस आर देयर. तो ये अनविंडिंग स्पाइरल आर्म्स ही तो है. सो इट इज अ बार्ड, वी कैन से इट इज अ बार्ड स्पाइरल आर्म. सो बार्ड स्पाइरल आर्म आपको क्लियर हुआ. तो ये क्या है, वट इज दिस, दिस इज बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी. ठीक है,
तो फिर से हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं और अच्छी तरह से भी समझते हैं. आई होप यू विल बी लाइकिंग द पैटर्न इन विच आई हैव अरेंज्ड. Yes, because it is, I think so, clear about to enough to clear you the things. So ऑर्डिनरी गैलेक्सी में कोई अनविंडिंग आपको बार नहीं मिलेगा, कोई अनविंडिंग स्पाइरल आर्म्स होंगी, बट वो न्यूक्लियस से ऐसे ही सीधा ही भूम करके निकल जाएंगी. क्लियर? सो बार गैलेक्सीज आर व्हाट विच हैव अ ब्राइट लीनियर फीचर ऑल्सो नोन एज बार, और जहां से आपको अनविंडिंग आर्म्स निकलती मिलती है बार से. ठीक है? So hope you are filling up with information. Yes, filling up. Nice. Now let's have the lenticular galaxies. अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेंटिकुलर गैलेक्सीज. मैम अभी आगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिकॉज हमें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज का सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गया कि वो तो स्पाइरल गैलेक्सी थी. हाँ, एक क्वेश्चन तो रह गया. हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है दैट इज व्हाट, बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी और इट इज व्हाट द ऑर्डिनरी स्पाइरल गैलेक्सी. क्या है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी? बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर ऑर्डिनरी स्पाइरल गैलेक्सी है? इट यू विल बी नॉन अबाउट दिस, बिकॉज टाइप्स करने के बाद हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में भी पढ़ेंगे. तब तक अपना दिमाग यूज करो कि उसकी पिक्चर अपने माइंड में रख के सोचो कि अनविंडिंग आर्म्स हैं या नहीं है या नहीं. जस्ट थिंक ऑफ दैट टिल we do not cover that. Okay, so lenticular galaxy, don't just go into that only, just think of this topic only. lenticular galaxies के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, because we want to be master in galaxies, we want to be master in universe. इसीलिए यूनिवर्स सीरीज शुरू की है हमने. lenticular galaxy which is the third type. lenticular galaxies are disk galaxies that have used up or lost most of the interstellar matter. Now what is interstellar matter? Interstellar matter means the matter which is in the form of stars, okay, or in the form of planets, like that. तो इंटरस्टेलर होता है जो स्टार्स वगैरह हैं, मीन्स इसने ज्यादातर अपने. सो नाउ इंटरस्टेलर मैटर आपको क्लियर हुआ. बट मैम यहाँ पे आपने लिखा हुआ है डिस्क गैलेक्सीज. डिस्क गैलेक्सीज, so what does this word disk galaxies mean? तो डिस्क गैलेक्सीज मीन्स दे आर मोस्टली इन द शेप ऑफ डिस्क. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पिक्चर जो पीछे लगी होगी वो वही टाइप की होगी जिस टाइप की गैलेक्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये जो पिक्चर है आपको इलस्ट्रेट की जा रही है, दैट इज व्हाट अ लेंटिकुलर गैलेक्सी. यू कैन सी द डिस्क शेप, देख रहे हो, और कितनी छोटी सी है ये, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इंटरस्टेलर मैटर है ही नहीं और बहुत ज़्यादा कम, जैसे एलिप्टिकल गैलेक्सीज थी, बहुत ज़्यादा कम नए स्टार्स बनते हैं. ठीक है? दे मे हाउएवर रिटेन सिग्निफिकेंट डस्ट इन देयर डिस्क. थोड़ी सी आपको डस्ट उनके डिस्क में मिल सकती है. एज अ रिजल्ट दे कंसिस्ट मेनली ऑफ एजिंग स्टार्स. एलिप्टिकल गैलेक्सीज जैसे ही इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, because they mainly consist of our aging stars. So now let's go on the types of what? Types of the lenticular galaxies. Let's move on. So now are the types of the lenticular galaxies. Lenticular galaxies may be divided into subtypes. May भी नहीं आएगा यहाँ पे, are divided. ठीक है? SO1, SO2, SO3. where objects of type SO1 are dust free. अभी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. SO1, SO2, SO3. 3. We don't want to study 3. How much you want to study? Let me know. 2. So let's discuss only 2. Where objects of type SO1 are dust free and those of type SO3 may exhibit considerable amount of internal dust extinction. तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो SO1 है वो क्या है? डस्ट फ्री है. डस्ट है ही नहीं. हम तो वी आर रियली क्लीन, वी डोंट नीड एनी डस्ट. क्लीन है हम, पूरी अच्छी तरह से क्लीन है. वी डू नॉट नीड टू ब्रूम आर हाउस लाइक आर गैलेक्सी और वी कैन से एनीथिंग, बट वी आर डस्ट फ्री, वी आर रियली क्लीन. और जो SO3 है वो भी कहते हैं हम भी साफ ही हैं, वी आर ऑल्सो क्लीन, बट वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट.
We have a considerable amount. We have a small amount of dust in our suns. Who say SO3 lenticular galaxies. तो बहुत आपको अच्छी वे से आई थिंक सो समझ आ गया होगा यहाँ तक का टॉपिक. यस, समझ में आ गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंड दिस सेशन. लेट्स एंड. नो, वी आर गोइंग टू स्टडी मोर. नो एंडिंग, नो एंडिंग. So now let's study the irregular galaxies. Irregular galaxies पढ़ते हैं. So now the irregular galaxy is a galaxy that does not have a distinct regular shape. इसके तो आपको नाम से ही क्लियर होगा कि irregular means to say regular shape नहीं होगी. That do not have a regular shape or a distinct shape. That is unlike spiral or an elliptical galaxy. Irregular galaxies do not fall in any of regular classes of Hubble's. अभी इरेगुलर गैलेक्सीज क्या है, एक डिस्टिंक्ट शेप नहीं है. इसी कारण जो हबल सीक्वेंस है उसमें ये किसी भी रेगुलर शेप या रेगुलर गैलेक्सी की फॉर्म में नहीं फॉल आउट करती. रेगुलर गैलेक्सी की फॉर्म में मींस स्पाइरल या एलिप्टिकल में फॉल नहीं करती बिकॉज शेप ही कोई नहीं है. ठीक है. दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर बल्ज एंड नो ट्रेस ऑफ स्पाइरल आर्म स्ट्रक्चर. ना तो इनमें कोई भी न्यूक्लियर बल्ज है, ना ही इनमें कोई स्पाइरल आर्म है. स्पाइरल आर्म पढ़ी थी अनविंडिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने बार्ड स्पाइरल आर्म में पढ़े थे. क्लियर. वी रेडी विद योर माइंड कि हम क्या करने वाले हैं. आपको क्या किसका आंसर देना है कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर वो सॉरी बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर ऑर्डिनरी स्पाइरल गैलेक्सी है. So now is we are going to study about what about some galaxies. अभी 4 टाइप्स तो हमारी खत्म होगी. Let's study about some galaxies. Now the first galaxy which we have is Andromeda galaxy. Andromeda galaxy. Yes, it is Andromeda galaxy. We do not have only our Milky Way galaxy. सिर्फ हमारी Milky Way galaxy एक यूनिक गैलेक्सी नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला था we have many galaxies. Andromeda galaxy. So now Andromeda galaxy also known as MESO 31, M31 और NGC 224 और 224. तो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है दैट इज उसको हम मेजर गैलेक्सी 31 भी बोलते हैं. इसको एंड्रोमेडा नेबुला भी बोलते हैं. एंड्रोमेडा नेबुला. यस यस, एंड्रोमेडा नेबुला भी इसको बोलते हैं और इसको मेजर 31 भी बोलते हैं, M31 भी बोलते हैं, NGC 224 भी बोलते हैं. ओरिजिनली हाँ लिखा भी है देखो मैंने. ओरिजिनली द एंड्रोमेडा नेबुला इज अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी. तो ये जो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिख रही है इट इज एंड्रोमेडा नॉट मिल्की वे. जस्ट डोंट थिंक कि आंसर तो मिल गया. अभी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है. थिंक टेल ऑल्सो. ओरिजिनली ये क्या है, एंड्रोमेडा नेबुला है. इसे मेजर 31 भी बोलते हैं, M31 भी बोलते हैं. टेल इज इट एज NGC 224 एज वेल. इज अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी. क्या है, एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है. मींस अनविंडिंग आर्म्स हैं और बार भी है इनमें. approximately 2.5 million light years away from the earth. मैम 2.5 नहीं होगा, ज़्यादा होगा. येस इट इज़ रियली मोर बट एज इन द शॉर्ट फॉर्म 225 लिखा है. इट इज़ 2.537. 2.537 है. ओके. इफ एनीवन आस्क यू इन डीप जस्ट ए वी नो इट. 2.537 लाइट ईयर्स. 2.537 लाइट ईयर्स. क्लियर. अवे फ्रॉम द अर्थ एंड नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू मिल्की वे. अभी ये क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी है टू आर मिल्की वे. ठीक है, इट इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर मिल्की वे. नाउ मैम अभी इस गैलेक्सी को फाइंड किसने किया ये भी बता ही दो. अभी तक का सारा आपने बता दिया. एडविन हबल ने ये किया, हर्मेस ने ये किया था, उसने ये किया था. ठीक है, ये भी बता ही दो ये किसने किया था, किसने फाइंड किया था इसको. यू कैन गेट इट एज वेल. एडविन हबल ही है ये भी. Edwin Hubble, let me erase the text of, let me erase the text. So Edwin Hubble settled a debate in 1925 when he discovered a type of variable star inside the Andromeda. अभी उसने एंड्रोमेडा नहीं फाइंड की थी, उसने तो एक स्टार फाइंड किया था एंड्रोमेडा के अंदर. इट इज एस्टिमेटेड टू होस्ट मोर देन ट्रिलियन स्टार्स मेकिंग इट 4 times larger than the Milky Way.
एडविन हबल ने एक डिबेट सेटअप किया 1925 ने, और उसने एक टाइप फाइंड स्टार फाइंड किया, टाइप नहीं, स्टार, टाइप ऑफ स्टार फाइंड किया इन द एंड्रोमेडा, ठीक है। और तब ये पता चला कि जो हमारे ये मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इससे एंड्रोमेडा गैलेक्सी तो 4 गुना बड़ी है। कैसे? बहुत ज्यादा स्टार्स हैं, इट कंटेन्स ट्रिलियन ऑफ स्टार्स, 4 times larger than our Milky Way galaxy. If I think of my Milky Way galaxy, तो मेरी मिल्की वे में 500 स्टार आ जाएंगे, 500 सोलर सिस्टम आ जाएंगे, 500 से ज़्यादा, चलो 500 लगाते हैं। अगर 500 हमने लगाए, इफ वी थिंक ऑफ 500, तो 500 सोलर सिस्टम मीन्स हमारा सोलर सिस्टम इज टू बिग। एक सोलर सिस्टम कंपेरेटिव टू 500, कैन यू थिंक ऑफ इट? 4 times bigger than the our Milky Way galaxy, Andromeda. Really interesting fact. So now let's move on to the next. That will be our last one, which is our Milky Way galaxy. तो ये last one है हमारी Milky Way galaxy, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं. The Milky Way galaxy is the galaxy that contains our solar system with the name describing the galaxy's appearance from the Earth. अभी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम क्यों है? वाई आर गैलेक्सी इज नॉट सिंजस ए, वर्डो ए, वाई इट इज नॉट एंड्रोमेडा ए, वाई इट इज मिल्की वे? मिल्की वे क्यों है? क्योंकि जैसा हम इसे स्काई में देखते हैं लाइक मिल्की अपीयरेंस, तो वैसे इसका नाम रख दिया गया एज मिल्की वे, ठीक है। सो मिल्की वे क्या है? एक गैलेक्सी है विच कंटेन्स अस, which contains our solar system, which contains our sun, which contains millions and trillions of stars. It is a hazy band of light seen in the sky formed of the stars that can be individually distinguished by naked eyes. और इसमें ये ऐसी मिल्की वे है जो हम रात को देखते हैं, which we see in night, and its star we are seeing and we can distinguish them by our naked eyes. Now our galaxy is called Milky Way. हाँ, ये टॉपिक हमने कर लिया है. Now our galaxy is called Milky Way because it appears as a milky band of light in the sky when you see it in a really dark area. So now our Milky Way क्या है? मिल्की वे इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, मिल्की सा बैंड लिखता है जब हम इसे डार्क एरिया में देखते हैं. डार्क एरिया तो रात को ही देखते हैं. So that is we have discussed it. I have written it two times. I don't know why. तो अभी यहाँ पे हमें ये तो पता ही नहीं चला ये बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर क्या है, ऑर्डिनरी स्पाइरल गैलेक्सी है या फिर बार्ड है. दैट इज, लेट मी टेल यू, इफ यू हैव फाउंड इट्स आंसर दैट्स वेरी वेरी नाइस, आई विल गिव यू थम्स अप. बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड, दैट्स ऑल्सो नॉट बैड. जस्ट कीप फाइंडिंग आंसर्स, डोंट लूज होप. सो लेट्स नो इट्स आंसर. नाउ आवर मिल्की वे गैलेक्सी our Milky Way galaxy is which is barred spiral galaxy. क्या है? इट्स बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी. तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक आई थिंक सो टोटली खत्म हो गया, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, लेट मी हैव some likes on this video so that I can help you with more interesting videos. So hope all of you like this session, and if you have any doubt for that also, I can help you. I'll switch on the comment section and you can like put your doubts there and I'll really help you with your doubts. Okay, so now let's end it. And in the next session, what we'll be studying, in the next session we have covered only 2 galaxies. We'll be covering more galaxies, and let's see, I think so stars will also cover. Yes, stars is also interesting topic, we'll also cover that. If you want any interesting video on this universe series or any video on your subject topics of grade 9th or any grade, then let me know in the comment section. Okay, so bye bye.